बिकॉज उम्र जो है इनके चेहरे से बिल्कुल भी दिखती नहीं है. आई थिंक ये कमाल की बात शायद बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा अभिनेता जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इन्होंने अपने साथ साथ अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को मौका दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से हम सब एकत्रित हो रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों है वो यहाँ पे हमारे साथ, क्या होने वाला है, क्या आगे देखने वाले हैं, सब पता चलेगा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए. वार्म वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रसेनजीत चैटर्जी. जितनी तारीफ उतनी कम. प्रसेनजीत चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, warm welcome, sir. Wow, I must say that they're very lucky, and you start aging backward now. ये जो आपको आशीर्वाद मिल चुका है सर, पहली बात warm welcome. It's always good to see you, you know, your energy and the aura that you carry. और जो आपका aura है, energy है, वो शो के ट्रेलर में दिख रहा है. Warm welcome. क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को आप? Good evening, and I think thank you so much for coming to this Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid की जो family है. We all welcome you, and I've been part of this family. So Enter Family is sitting here, and of course हमारे एक production house हैं, and Ideas Creations Productions. So उनकी तरफ से और Star Plus की तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत warm welcome. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. What I really want to say that before I start talking, I think I must talk to the person जो हमारे जो शो हैं, उनके जो क्रिएटर हैं, उनके जो कहानी, जिसके मतलब वो है नहीं आज हमारे साथ. शी इज़ इन कैलकाटा. So I just want her to be talking to our press media friends so that they know a bit more about the story and the thoughts. But I'm very lucky to have an excellent team, which I want to talk about them later on. So अगर हम लोग प्यार से उन्हें राखी दी कहती हैं. क्या बात है? Everybody talks like Rakhi in Kolkata, but she is Shashwati Ghosh. So if you can talk to her. Absolutely. I think सर आपने कहा है तो फिर बिल्कुल. I think let's hear out from the. So good evening, everyone. Thank you very much for coming. So we are presenting Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid, fresh serial which is full of, you know, Gen Z spirit, full of fun and love. So this was the inspiration of creating Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid, that we wanted to present a very different feel to the audience with some Gen Z characters and some older ones, their conflicts, their emotions, and to a love story of two completely contrasting characters who are influencing each other. For the very first time, and how different is writing for HGEC versus BGEC? A very technical one though. We are really excited to meet the family members, right? Yes, it's a big family. It's not a small family. So I think everybody will not fit on the stage, but let's start that Vikramji is here, and my director is the head of the family. Wow. And Shweta ji, the creative director, and I must call my partner Srimanto Chatterjee on stage for a second. Yeah, he is my partner. He looks after the Enter television section of our company, and he's really working hard. Everybody is working very hard, and a bunch of great actors, very senior actors, very young actors, and I think that's the combo we have on the stage. It's not possible, maybe they all will not fit on the stage, but I first of all need to call the head of the family. Yes. हमारे दादाजी. Wow. And one of my favorite actor.
दर्शन जी एंड अभी अपना राखी जी ने मतलब शी टोल्ड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट टू कैरेक्टर्स. सो हमारे जो है ना, whom do I call first? Let's have some guesses or maybe some excitement. Tell me. किनको देखना चाहेंगे सबसे पहले आप? Whom do I call? Brothers and sisters. यूवी और कथा? Come on. Bro, Katha. Bro, Katha. धर्म संकट में फंस चुकी है फैमिली. So chalo, let's call both of them, UV and Katha. Whoa, ladies and gentlemen, give it up. Wow. So this is the family, and there is an extended family sitting there. A lot of people, which I am going to talk about them later on. Thank you so much. We'll surely call everybody on stage, but Dadaji and the entire family, I want you to please have कृपया विराजमान हो जाएं, so that हम आपसे कुछ बातचीत करें और हमारी जो मीडिया फेटर्निटी है वो भी एक्साइटेड है बहुत सारे सवाल लेके. और बट उससे पहले एक दो सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा. So we have यूवी, कथा, दादाजी को पहले पाए लागू आशीर्वाद ले लें. He is a big man financially and otherwise तो खैर है ही. And yes, I think one question, I'm sure media fraternity family members would definitely have in their heart. And दादा, सवाल आपसे है और I'm sure पूरा देश जानना चाहता है. The whole nation wants to know. You've acted, you've of course produced, and you've launched many, newcomers. आपने पहला मौका दिया ना सिर्फ actors को, filmmakers को, directors को, मगर पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि you're producing a Hindi television show. So आखिर क्या चीज़ आपको खींच के लेके आई that you're coming up with this very different, one of the upcoming Gen Z show on Star Plus? Let me be very honest. Please don't call me producer. These are the people who are sitting here as the producer of this particular show. Wow. I'm part of this team. I never consider myself as a producer because end of the day I've been working for last 40 years. And what we really learned about it is a bit of acting. And I think that's what we have been doing for last 40 years. And with your blessing, I've completed around 348 films as an actor. So I think I will love to call myself as an actor than more than a producer. Yes, if you talk about production, it's my first Hindi production in a way, but it's not that because my dad has been working in Hindi film from 1960. From Bisalba. So my connection with Hindi industry is nothing new. And now all over the world, all over the country, people are talking about Pan-India. So why not? Why Pan-India is only for film or Pan-India is only for OTT? It has to be for television because we have a lot of talents all over the country. And I think television rich is high. It's more. So I think the talent from Bengal, from Marathi, from Punjab, from Gujarat, everybody can come and do television. So that's a kind of a thought we have thought, and thanks to Star Plus. So as we just spoke to Rakhi Di, she's one of the finest storyteller we have. So that's, I think, is the concept to come to Hindi and do some good work. And my association with Star was like very long. I must say that I think in Bengali especially, I'll say that Star Jalsa had produced a show where my company, NIDS Creation, was the producer. And I was blessed that that was television serial show was created and directed by late Ritu Porno Ghosh, which was a record. Wow. So I have a huge, long relationship with Star family. And I think we are looking forward to do something. I'm not saying it is kabhi nahi dekha. Ye hota nahi kabhi. Everybody says we are doing something which has never happened. Cinema sabhi kahin na kahin ek hi cheez bana diya. But we are trying to do something which is fresh, which is something little meaningful, which, what I think when we produce, we try to do something which is running, like this kind of a thing. I think the entire team is trying to do something which is something different from the regular show, something little real, something which is close to your heart. And as we are saying,
This is a show with a lot of senior people, and it's a show with a lot of younger people. So I think it's a very refreshing and very different kind of a show. Indeed. Thank you. सर वेरी नाइसली सेड आई थिंक ये सवाल सबके माइंड में था मगर एक सवाल और है आई थिंक एंड यू सेड पीपल ऑल अक्रॉस इंडिया नो यू बट आई एम सॉरी बट आई थिंक पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड नो यू आई वाज इन यूएस आई वाज इन दुबई पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट योर स्किल योर क्राफ्ट सो प्लीज वंस अगेन गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर दादा ही इज वन पर्सनैलिटी हु इज मेकिंग अस प्राउड वर्ल्ड वाइड ऑन दैट नोट सर आई थिंक आज के टाइम में बहुत बातें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में टेलीविजन इंडस्ट्री में नए लोगों को मौका जो है वो सही तरीके से नहीं मिला जाता है बट दादा हैज़ बीन वन पर्सन जिन्होंने हमेशा वही स्टॉक खरीदा है जो बिल्कुल मार्केट में नया हो यानी कि सभी नए फिल्म मेकर्स के साथ डायरेक्टर्स के साथ एक्टर्स के साथ काम किया है सो सर वी आर रियली ऑनर्ड एंड टू टॉक अबाउट दिस एंड वो क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है कि हमेशा आप नया स्टॉक पे अपना दाव लगाते हैं ऑलवेज वर्क विद यंगस्टर्स विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट नहीं नथिंग वेरी सीरियसली बट आई मस्ट टेल यू मुझे पता है कि एक एक्टर हो या डायरेक्टर हो नए जो होते ना उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनकी जो जर्नी होता है ना वो बहुत सो हमारे जो कंपनी है इन आइडियाज़ क्रिएशंस प्रोडक्शन वो भी 20 साल की कंपनी है बट बिलीव मी इन आइडियाज़ क्रिएशन हैड नॉट प्रोड्यूस्ड अ फिल्म विद Prosenjit Chatterjee. They always produced a film with the first time director or first time actor actresses. And I'm very proud to say those young people are now really doing not good, they are star. They are big star like Arjun Chakravarti, Mimi Chakravarti, they're big star now. So I'm so blessed that, we really tried hard to get young, fresh people who are going to make it big in future. So yeah, so I know the pain when a newcomer comes. I have faced it. So I think that's the only platform I can give or I can offer from my company for newcomers, for new directors, or a new storyteller to tell them their story. So yeah, that's it. It's a blessing to have a producer like Dada. And of course a co-star and a family member. On that note, sir ने हमेशा all the people work with, they've been stars. But Star Plus का already एक star है, हर घर का star है, जो अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दादा के हाथ लगने के बाद सुपरस्टार बन जाएगा टेलीविजन का. Give it up ladies and gentlemen for यूवी. इनको हमने तमाम किरदारों में देखा है एंड स्टार प्लस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है. हर एक माँ चाहती है कि मुझे ऐसा बेटा मिले. हर वैलेंटाइन पे लड़की इनकी डीपी लगाती है मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए. और फाइनली कथा जो है उनके साथ क्या कथा होगी वो हमें जल्दी पता चलेगा, कभी नीम नीम कभी शहद शहद में. मगर यूवी, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस कैरेक्टर एंड क्या होने वाला है? इफ यू कैन जस्ट स्पिल द बीन्स, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत. और स्टार के साथ अब और क्या क्या होगा? Okay, so first of all, congratulations to everybody on this beautiful journey that we are going to start. And I welcome all the media fraternity that has come here. And आज आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए हैं हमारे शो की लॉन्च पे. स्टार प्लस के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना है एक्चुअली. आई डिड अ शो विद देम, ये है चाहते, and it went on to be one of the most successful shows for Star also and for me also, and it was a turning point in my career. और उसके बाद 4 साल तक किया मैंने वो शो. आई थिंक मोर देन 1000 एपिसोड्स. Wow, 1000 episodes. एंड अब मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ विद कभी नीम नीम कभी शहद शहद. और आई होप कि ये शो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जैसे कि सर ने कहा कि आई होप दिस गोज ऑन फॉर 2000 एपिसोड्स. और Wow. हम सब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी कास्ट क्रू, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं. एंड या दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो. जो हमने आज तक जितने भी शोज़ आपने टीवी में देखे होंगे उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, द मेल लीड इज ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी दिस एंग्री यंग मैन, टिपिकल वन डायमेंशनल कैरेक्टर जिसको बहुत गुस्सा आता है एंड ही जस्ट ही इज मिस्टीरियस, ही ट्राइज टू कीप हिज इमोशंस टू हिमसेल्फ एंड बहुत ऐसा कैरेक्टर होता है. बट दिस गाय इज नॉट दैट. ये बिल्कुल वैसा नहीं है. ही इज टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस.
और ये बहुत ही ही इज़ अ फन गाय, ही इज़ अ चिल गाय, ही लव्स हिज फैमिली, ही लव्स हिज कजिन्स, बहुत मस्ती करता है उनके साथ. ही इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ जिसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं. ही इज़ अ ह्यूज मैसिव फैन फॉलोइंग, ही इज़ अ व्लॉगर. और ही डजंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीबडी. वो एंग्री यंग मैन बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही फन चिल कैरेक्टर है. बस कभी कभी कथा उसकी लाइफ में आके उसको थोड़ा परेशान करती है, जो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है. बट ही कैन लिव विद दैट. एंड उसके जो यंग कजिन्स हैं, ही हैज़ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, क्योंकि उसको शायद वो प्यार नहीं मिला है जो वो चाहता है कि उनको मिले. और ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज कजिन्स. सो यंगस्टर्स जो भी हमारी फैमिली में है, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. दे हैव अ रियली ग्रेट बॉन्ड. बट एट द सेम टाइम जो एल्डर्स है फैमिली के, उनके साथ तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यूवी और उसकी गैंग का, स्पेशली विद द ग्रैंडफादर सर के साथ. सो ही हैज़ दिस सेंस ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर. तो कभी ना कभी उनके नोक झोंक चलती रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में. बट स्टिल तब भी वो ही इज़ नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम. ही ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. Right. I see Dadaji smiling on that. तो दादाजी अभी तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन यूवी के सामने स्माइल बिल्कुल नहीं करते. He's waiting to go backstage and show some love. सो ये है जो यूवी का कैरेक्टर है. और फिर उसके इस कलरफुल लाइफ में कथा आ जाती है, जो उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज करेगी फॉर द बेटर. Wow. Give it up, ladies and gentlemen, for our hero. And then, of course, we talk about the heroine, Katha. Katha, इस शो की कथा क्या होने वाली है वो हम आपसे जानेंगे. और आपका ओल्ड सोल इन अ जेंजी बॉडी, ये बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आज के ज़माने में इन 2025 इट्स वेरी हार्ड टू सी. सो वी वांट टू नो कथा कि आप भी रियल लाइफ में ऐसी हैं या काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आपको कथा के किरदार में आने के लिए? कथा एक बहुत ही स्वीट लड़की है. शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. आई थिंक हर एक इंसान में वो कथा होता है अंदर ही. बट आई थिंक नाउ डेज वी ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू फिट इन. तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई. हाँ, थोड़ी बहुत हुई, जो हमने वर्कशॉप्स एंड ऑल में काफ़ी काम किया. एंड हाँ, बहुत ही सीधी सादी लड़की है, थोड़ी सी सुपरस्टिशियस है, गॉड फियरिंग है. और अपने छोटी सी उसकी जो वर्ल्ड है, पेड़ पौधे से बहुत प्यार करती है. उसके जो मामा मामी हैं उनसे बहुत क्लोज़ है. तो इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, बट इट वाज फन. क्या बात है, इतने प्यार से कोई भी कथा सुनाएगी तो फिर क्या कहें, जोरदार तालियां कथा के लिए हो जाए यार. ये कथा जो है जल्दी आप देखेंगे ऑन स्टार प्लस. और ये क्या स्टोरी होने वाली है, विल ऑल गेट टू नो दैट. आई एम श्योर वी ऑल वेरी एक्साइटेड, मगर बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़े डरे भी हुए बिकॉज अब बारी आ गई दादाजी की. दादाजी पायलागो नमस्कार, पैरे पोना. दादाजी नमस्कार. हाँ, आपकी आवाज में मतलब इतना भारीपन है, मैं तो लगता है कि मैं स्टेज से गिर ना जाऊं मैं. प्लीज डोंट डू दैट. राइट. सो दादाजी, हमें सुनने में आया कि आप में और यूवी में इतना प्यार है, और शो से पहले भी जो प्यार था वो हमें खिड़कियों से सुनाई दे रहा था. सो इज दैट ट्रू? बहुत प्यार है आपके बीच में, एंड शो में तो हम देख ही लेंगे. वेल, जब शो की बात करें तो शायद अगर प्यार है तो वो बहुत दिखता नहीं है कहीं. क्योंकि दादाजी जो अपने ही एक टाइम एंड स्पेस में बंधे हुए हैं, हर एक इंसान का ऐसा होता है. वन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वन्स ओन टाइम्स. एंड वो हालांकि अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली से बहुत ही प्यार करते हैं. शायद उनकी अपेक्षाएं इतनी सारी है कि जो जब उनका पोता वो करने से इनकार करता है या तो ये कहता है कि भाई आपके सपने आप मेरे थ्रू मत जियो, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत बुरा लगता है. क्योंकि ही इज नेवर, आई डोंट थिंक ही हैज हर्ड अ नो फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम हिज ओन फैमिली अबाउट व्हाटएवर ही वांट्स. व्हाटएवर ही वांट्स हैपेंस. इट इज दैट काइंड ऑफ अ मैन, दैट काइंड ऑफ अ फैमिली. और ये पोता आके इफ इज कॉकिंग स्नूज एट हिम, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है. कभी कभी नहीं, आई थिंक हर बार, हमेशा. हर बार.
So yeah, Dadaji is more neem than Shahid, and but उनका जो कड़वाहट है ना वो एक नीम की तरह। हाँ मतलब वो End of the day आई भाग्य। एम वेरी श्योर कि इट इज वो गुणकारी होगा ही, ऐसा मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं यूवी को अभी तक तो मैंने उसे बहुत ही डांटा है, क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी हरकतें की है, और लेकिन कहीं पीछे मुझे ख्याल है कि ये बंदा सुधरेगा, ही विल इम्प्रूव, एंड ही ऑल्सो हैज़ प्रोबेबली स्टम्बल्ड अपॉन द करेक्ट पर्सन जो उसके ये मनमौजी पोते को सही रास्ते पे ला सके। तो हाँ, तो वो अभी आएगा आगे कैसे एक ओल्ड सोल आपने कहा, जी। राइट, सो an old soul in a Gen Z body and an old soul in an old body. Both probably have the same purpose in front of them. Let's see how it folds out. I am also waiting. सर आपको दादाजी को देख के लग रहा है कि you are also in a Gen Z body. No. Because I wish I the were. kind of fitness you have. मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर देखने के बाद, दादा ये मेरा एक एज अ ऑडियंस ओपिनियन है कि हमने रणबीर कपूर को देखा एनिमल में, उनका प्यार बाप के साथ, मगर यहाँ पे जो एक बेटे और दादा में प्यार है ये पहली बार दर्शाया जा रहा है। सो आई थिंक ऐसे कुछ तकरार, ऐसा प्यार देखने को मिलेगा। आई होप सो। नहीं, आई वुड से कि सी हम सब जानते हैं टेलीविजन इज अ मीडियम ऑफ राइटर्स, एंड इट इज सच अ लवली थिंग फॉर मी टू बी प्रेजेंट हियर वेयर द एंटायर proceedings of this press conference have been started very rightly from the writers, talking about the show. Absolutely. Which is something that I have not seen in my history of television acting since past many years. Writers generally एक मार्जिन में, एक कोने में ऑब्सक्योर 2-3-4 बैठे रहते हैं, लेकिन इट इज सच अ डिलाइटफुल थिंग दैट माय राइटर बिगिंस सेट्स द बॉल रोलिंग। और वैसे भी ये शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी नवीनता है, वैसे ही ये शो में भी बहुत नवीनता है। इसमें कोई सांस नहीं है, और ब्रेकिंग द मोनोटनी लेडीज एंड जेंटलमैन। यानी ये बहुत डीप लाइन था सर, ये बहुत वायरल होने वाला है, I'm telling you। तो लेकिन फिर भी इट इज लाइफ, and life in all its aspects and all its beautiful facets, like a diamond, so I am really excited to like an audience, even we actors are also waiting to discover what nuances, what twists and turns happen to the story as we go along, and I'm incredibly excited about it. मुझे लगता है कि इतिहास बदलने जा रहा है। रात के 9:30 बजे महिलाएं टीवी के आगे बैठती थी, मगर इस शो के बाद से 9:30 बजे मर्द लोग अपने बेटों के साथ बैठेंगे ये दादा और बेटे का प्यार देखने के लिए। गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर आवर स्टार कास्ट। कभी नीम कभी शहद, वन ऑफ द very fresh shows on Star Plus, ladies and gentlemen. Now we are open to Q&A. We'll have a Q&A with our media fraternity. So very quickly we'll have, मगर मैं बता दूं आपसे से पहले we start, we have a lot of other surprises. We have some interesting games also. So मैं चाहता हूं you better be hooked onto your seats. But yes, we'll start with the Q&A. Hi Dada, this is Hari here from Zoom. मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि ये आपका पहला हिंदी टीवी शो, दादा से हैं या दादाजी से हैं? दादा से, आपसे दा से। तो जैसा कि ये पहला टीवी शो है आपका हिंदी का, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी हिंदी में ऑलरेडी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा चूंकि 2 जनरेशन के बीच आपसी मतभेदों की पूरी कहानी है, तो क्या आपको लगता है कि जेन जी ज़्यादा सेंसिटिव है पुरानी जनरेशन से? मैंने पहले बोल दिया कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो जो प्रोड्यूसर हैं, हाँ मैं पार्ट ऑफ दिस टीम में हूँ, और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चैलेंजिंग ये था कि हमें ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, जिस हिसाब से हम लोगों ने इस कहानी सोचा है विद द हेल्प ऑफ द एंटायर टीम, इसको हमने और स्टार इवन
इसको हमने सही तरीक़ा से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। क्योंकि कहानी जो आती है ना, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक्टर्स भी बाद में आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और मुझे लगा था कि ये शो ऐसा ही 2, 3, 4, 6 एक्टर्स लोगों में से नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं और बहुत सीनियर एक्टर्स भी। हम लोगों ने बहुत लंबा 3 महीने तक वर्कशॉप किया, जो टेलीविज़न में शायद कमी होता है, राइट? Right. एंड थैंक्स टू दी सीनियर एक्टर्स जो ये बच्चों लोगों के लिए टाइम निकाला, उन लोगों के साथ बैठा घंटों भर, और सेट पे आने से पहले उन लोगों की जो कनेक्शंस हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल है। मैंने पहले ही बोला कि मेरा पर्सनल स्कूलिंग मोर ऑफ ए फिल्म, तो हम लोग कुछ चीज़ें बिलीव करते हैं, तो उसे हमने ट्राई किया। हमारे टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत दिनों से मेहनत करके ये शो हमने शूटिंग चालू किया। ऐसा नहीं है कि ये हमारा टारगेट डेट है, इसको टेलीकास्ट करना है, कल से शूटिंग करें, ये नहीं है। और सेकेंडली आपने पूछा है मेरा जो 2 जनरेशन, देखिए मेरा घर में भी 3 जनरेशन है। मेरा डैडी है अभी तक, मैं हूँ, मेरा बेटा है, इज़ जस्ट 20 ईयर्स। वो जनरेशन गैप होता है, बट तो मुझे लगता है ना, हर आदमी, हर जनरेशन का एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है, और वही खूबी है, वही लाइफ है। और समय के साथ, हाँ, पहले क्या होता था, पहले आई थिंक हमारे समय वो टाइम लेता था, मतलब 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद चेंजेस आते थे। अभी चेंजेस हैज हैपेंड इन टेक्नोलॉजी, राइट? तो अगर मैं अभी अपने बच्चों को कुछ बोलूँ ना, बोला है फालतू बोल रहे हो तुम, अभी मैं बताता हूँ ना तुमको। बट मेरे को वो भी अच्छा लगता है ना कि आज के ज़माने के बच्चे लोग जाते हैं डेट करने के लिए, फेसबुक में डाल देते हैं, एंड दे टेल इट टू द वर्ल्ड। आई अप्रिशिएट दैट। हम लोग छुप छुप के बहुत सारे चीज़ करते थे, तो वाई? सो अप्रिशिएट और रेस्पेक्ट ना दोनों तरफ से ही है। उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। सो आई थिंक हमारे इस शो में ये जो 3 जनरेशन की कहानी है, वो जो रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसमें ज़्यादा जो है ना, एंड ऑफ द डे जो है वो बॉन्डिंग और प्यार ही है, और लड़ाई भी वो प्यार से ही होता है। सो दैट इज द शो ऑल अबाउट। आई थिंक दैट्स द रियल लाइफ एंड दैट्स द फैमिली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पाठक है और मैं प्रेस न्यूज़ टीवी से हूँ। मेरा सवाल अबरार और आफिया आप दोनों से है। इस शो की बात करूँ तो आज की जो जेनजी जनरेशन है वो फिल्म, वेब सीरीज़ ये सब देखना ज़्यादा पसंद करती है। आपके शो की वो क्या खास बात है जो शो कनेक्ट करेगी ऑडियंस, जेनजी ऑडियंस को कनेक्ट करेगी आपके शो की तरफ? मेरे हिसाब से जो इस शो में 2 जनरेशन्स का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, एक तरफ हम जेन जी की बात करते हैं, आज के लोगों की, आज के बच्चों की बात करते हैं जो टोटली एक अलग थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एंड देन देयर इज दिस अदर ओल्डर जनरेशन जो अपने पुराने वैल्यूज़ और अपने पुराने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इनमें से दोनों जो 2 ग्रुप्स हैं, उनमें जैसे जेन जी के लिए जो ऑडियंस है, जो यूथफुलनेस, जो यूथ वाइब है शो में, वो वाइब आई थिंक हार्डली आपको किसी शो में देखने को मिलेगा। एंड मैंने भी पहली बार ये एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द वर्कशॉप्स। हम सब मिले, देयर इज़ अ लॉट ऑफ यंग एनर्जी इन दिस शो, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में, द यंग पीपल, सबका एक अलग कैरेक्टर है, सबका एक अलग बैक स्टोरी है, सब का एक वैल्यू है। इट्स नॉट दैट कि बस लोग ऐसे ही हैं एंड दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एवरीबडी हैज़ अ proper contribution in the show. So if I can put it in a more better way, तो ऐसे shows हमको शायद पहले ज़्यादा दिखाई देते थे in the 90s, जिसमें ये youth वाली vibe होती थी, जो youngsters का show होता था। तो ये आज के youngsters Gen Z पे based है, तो I think that is the USP of the show. Family drama, conflict तो हर show में होता है, but this uniqueness जो इस show की है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आफिया? आई थिंक यस, जैसे ही कवर्ड इट ऑल, बट 2 वर्ल्ड्स है एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई राइट है और कोई रॉन्ग है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग दैट कनेक्शन, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना होता है। ज़रूरी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी हाईलाइटेड पॉइंट इन आवर शो। एंड जिस तरीके से हमने शूट किया, इट्स वेरी फन, वेरी फ्रेश। हमें भी करते हुए शूट्स, सीन्स करते हुए बहुत मज़ा आया है, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा।
इस शो में आप शेफ़ प्ले कर रहे हैं, शेफ़ का किरदार आप वो भी निभा रहे हैं, तो आपको इस शो के चलते, इस कैरेक्टर के चलते क्या कुछ सीखना पड़ा, कुछ नई चीज़ें? एक्चुअली मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो वही है, कुकिंग का, जिसका मुझे कोई भी इल्म नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू कुक एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की हु कैन कुक फूड, हु कैन कुक गुड फूड. तो एक तो होता है कि यू कैन कुक फूड, दूसरा होता है कि यू कैन कुक रियली गुड फूड. जो वो कर सकता है ना, आई थिंक इट्स अ सुपर पावर. तो ये सब लोग नहीं कर सकते ऑनेस्टली. एंड बिलीव मी, आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स टू कुक फूड, बट मुझसे नहीं हुआ. हमेशा कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया. तो ये एक आर्ट है. यस, थोड़ा नीम थोड़ा शहद हो गया मेरा. सो इट्स लाइक इट्स अ टैलेंट, जस्ट लाइक एक्टिंग है, सिंगिंग है, इवन कुकिंग इज़ एन आर्ट. आई थिंक मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था एक एक्टर का, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको रिलेट किया था. उन्होंने कहा था कि एक्टिंग और कुकिंग ना, वो कुक भी थे और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं वो. तो उन्होंने कहा था कि ये दो सेम चीज़ें अगर आप मानेंगे ना, जिसमें उसमें जो प्रोसेस लगता है इसमें भी वही होता है. द काइंड ऑफ मेटिकुलस थिंग दैट यू हैव टू डू इन एक्टिंग, इन योर नुआंसेस, वैसे ही आपको ना खाना बनाने के वक्त भी आपको उतना सही मेजर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया. तो ज़्यादा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, कम हो जाएगा तब भी ख़राब हो जाएगा. वैसे ही एक्टिंग में भी होता है. आप ज़्यादा कर लेंगे तो ओवर एक्टिंग होती है, कम करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि ये तो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रहा है. तो वो एक थिन लाइन है, राइट? तो ये दो चीज़ें. So I think cooking is as difficult as acting, but I'm trying to learn it. प्रोशनजीत सर, आपके लिए क्वेश्चन है. हाय, दिस इज श्वेता फ्रॉम IWM बस. Hi. मेरा सवाल आपसे ये है, हम मॉडर्न लव के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस, वेदर इट्स ओल्ड स्कूल लव और मॉडर्न लव? वेल, लव तो लव ही है, ओल्ड स्कूल हो But या अभी Gen Z नहीं. के तरफ से आई जिस थिंक type से किया गया है. बोथ द वेज. आई मीन, देखिए, एक ज़माना था हम लोगों ना, जब प्यार में झगड़ा होता था, मतलब वी हैड टू वेट. वो कभी मेट्रो में या कहीं पे मे बी आफ्टर 2 वीक्स हम लोग मिलेंगे और उसके बाद एक सॉरी बोलेंगे. तो वो एक इंतज़ार करना पड़ता था. और अभी आपके पास है मोबाइल, तो आप सॉरी बोल सकते हैं, आप कुछ भी भेज सकते. तो वो एक डिफरेंस तो है, वो कम्युनिकेशन का डिफरेंस है. बट आई थिंक एंड ऑफ द डे लव जो है ना, प्यार जो है ना, वो आज 25 साल 30 साल 50 साल पहले भी जो था वही भी है आज. वो है, उसमें दुख भी हैं एंड हैप्पीनेस भी हैं, सारा चीज़ है. नोबडी कैन प्रॉपरली से व्हाट इज़ रियली लव ऑल अबाउट. हैज़ यू सेड कि आपने अपने प्रोडक्शन हाउस में अभी तक काम नहीं किया है, बट इफ़ गिवन अ चांस यू वांट टू एक्ट फॉर योर प्रोडक्शन हाउस फॉर दिस शो, विच कैरेक्टर यू विल पिक? हाँ, नॉट दादाजी एट ऑल. हाँ, मतलब हमारा जो यूवी के कैरेक्टर है ना, इस शो में, पर्टिकुलरली इस शो में, ऐसे कैरेक्टर हमें लगता है कि हमारे जो बंगाली हो, हिंदी हो, अपना इंडियन सिनेमा के जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो हमारे हीरो होते थे, मैं भी किया बहुत सारे फिल्म ऐसे ही कमर्शियल फिल्म, उसके जो हीरोज़ होते थे ना, उनकी जो इनसाइड, तो वो यूवी में है. यूवी इज़ जस्ट नॉट अ कैरेक्टर. जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो टेलीविज़न का कैरेक्टर का नोट होता है, वैसा नहीं है. वेरी कलरफुल, एक वेरी रोमांटिक, प्रॉपर शेडेड कैरेक्टर है ये यूवी. बट दैट ऑल्सो आई डोंट वांट टू डू. आई थिंक आई वांट टू गो विद दैट यंग ग्रुप. मैंने अगर ले लिया तो इस यंग ग्रुप के अंदर, तो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट यंग ग्रुप. आई लव देम. आई एम सीइंग द एपिसोड्स, आई लव देम, सो आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. चलो बना लो, कोई अंकल शंकल बना के मेरे को ग्रुप में ले लो. फ्रॉम वीरल भयानी. दर्शन सर, आपसे मेरा सवाल है. जेन ज़ी के ऊपर ये शो बना हुआ है और अभी सर ने कहा कि न्यू एक्टर्स को भी वो एंट्री देते हैं शो में. आपको कुछ एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस दोगे जेन ज़ी को और न्यू एक्टर्स को? नहीं, सबसे पहले तो बड़ी गलती होगी जेन ज़ी को कुछ भी एडवाइस देना. ये मैंने अभी सीखा है मेरे एपिसोड्स शूट करते करते. क्योंकि एक चीज़ मैं पर्सनली मानता हूँ
कि आप किसी की भी एडवाइस सुन के आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाते, आप ठोकर खा के ही बनाते हैं. तो यू नो द एक्सपीरियंशियल लेवल एट विच यू एक्सपीरियंस योर लाइफ, दैट ओनली टीचेस यू. लेकिन जहाँ तक एक्टर्स का सवाल है, वेल लाइक एवरीथिंग एल्स, उसके मायने भी बहुत बदल गए हैं. लेकिन as Prasanjit Da said, you know, love essentially remains love and the same, though the communication may differ. So similarly, I think the craft, the talent of acting remains constant. It is only how seriously you turn your passion into your profession. That is what I think today's Gen Z is all about. When people of my age and when my generation started, it was more of a passion which we didn't know which direction it will take us, how it will all unfold. But I think what I see nowadays is that there is a lot more of, you know, usage of the brain also as much as the heart. That's what I've seen. And I think it's a good thing, because हम ऐसे era में जी रहे हैं जहाँ यू नो बहुत सालों पहले साल्वाडोर दाली नाम के, एंडी वारहोल नाम के एक आदमी ने कहा था कि टेलीविज़न के इन्वेंशन के बाद कि नाउ वी विल हैव एन एज वेयर देयर विल बी 15 मिनट्स ऑफ फेम. लेकिन अब विथ ऑल द सोशल मीडिया वो 15 मिनट ऑफ फेम हैज़ टर्न्ड इनटू 15 सेकंड्स ऑफ फेम. तो वो उतने क्लटर में अगर एक एक्टर को अपना नेविगेट करना है, अपनी नैया आगे ले जानी है, तो मैं मानता हूँ कि उसे अपने पैशन को तो बरकरार रखना ही पड़ेगा. साथ साथ में उसको शायद ये भी सोचना पड़े कि किस तरह से आई स्टैंड आउट अगेंस्ट द क्लटर. वो एक चीज़ नई देखी है मैंने मेरे साध्यायियों में. तो और मैं इसे बहुत ही सराहता हूँ, क्योंकि एज यू इवॉल्व, as we all evolve, we are facing different challenges for which we need different tools and different solutions. So no advice is that way, but lage raho. That's what even my elders used to say, कि lage raho. Just go on and it will all come to you. क्या बात है. So Very well said. One last question. Yes. Hi sir, Narinder Bhutani here. सर मेरा क्वेश्चन बुम्बा दादा से है. सर ये बुम्बा दादा से फिर अब वरुण दादा, सर ये दादा दादा सर मेरे को सूट नहीं करता आप पे सर. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी में आपके हिसाब से कौन सा नाम ऐसा है जिससे आप चाहते हैं कि हाँ ये दादा हटा के कुछ ऐसा नाम बताओ जो आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट है. ये दादा मुझे पता नहीं, मतलब दादा हटा के मेरा नाम प्रसन्नजीत कोई बोलता नहीं है ऑनेस्टली. ये जो बुम्बादा है, रियल नेम हटा के कोई ऐसा नाम जो बुम्बा दादा और वरुण दादा से भी अलग कुछ ऐसा नाम जो आप चाहते हो कि जिससे मैं फेमस हो या मेरे को पहचाने लोग. मैंने सबसे फेमस आदमी का कैरेक्टर कर चुका हूँ, नेताजी सुभाष बोस. सो ही इज अ रियल हीरो. सो मैंने वो कैरेक्टर कर चुका हूँ. तो हम नेताजी बोले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. दादा हटा के मेरे को भैया बोल दे. सर वही बात हो गई. ये तो सर नाम नहीं आया कोई ऐसा अच्छा सा. कोई बचपन में आपकी मम्मी आपको भैया मेरा नाम है, उसके साथ भैया दादा. भैया दादा. But not applicable for women, right? Thank you so much. I think thank you so much for the questionnaire. I think now is a very, it's time to play some very interesting game which I have planned with you guys. So are we all set? Let's do, है ना? So हमारी media fraternity जो है हमारे साथ खेलती रहेगी. बस वो मैं आपको explain करूँगा. We'll have some props और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको guess करनी है. शो का नाम है कभी नीम नीम कभी शहद शहद. बहुत ही प्यारा सा नाम है. तो गेम भी इस नाम की तरह बहुत प्यारी है. और आई थिंक धीरे धीरे आई रिवील ऑल द सरप्राइज एलिमेंट्स, सस्पेंसेस, क्या क्या होने वाला है. शो में जो होगा वो होगा. हमारी प्रेस कॉन में भी देखिए कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. सो आई थिंक कैन वी प्लीज हैव द टेबल राइट हियर. सो विल हैव टू टीम्स, राइट. सबसे पहले हमारे पास होंगे द दादाज. सो दादा एंड दादाजी हमारे साथ होंगे एक टीम में,
and then we have this lovely pair, this lovely couple who will be playing with it. Yes. So I think जैसा कि family के जो हमारे HOF, right? That's how we HOF, head of family. So हम शो में इनको इस तरह से याद करेंगे HOF. So जो हमारे दादाजी हैं और हमारे दा हैं उनके साथ हम ये खेलने जा रहे हैं. We'll ask the lovely pair कि आप विराजमान हो जाएं. You'll have little bit of rest, have some tea, coffee, and enjoy the game because यहाँ से आपको भी कुछ pointers मिलने वाले हैं आपकी गेम के लिए. Yes. So दादा प्लीज आइए यहाँ पे. अक्सर ये सब जो है हमें प्लेन में मिलता है, ये सुकून मिलता है, मगर ये ऐसा सुकून आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है. अक्सर जब प्लेन में ये मिलता तो हमारी नींद आ जाती, ये लगा के आज आपकी नींद उड़ने वाली है. So क्या होने वाला है, that I'll explain you. I'll add these blindfolds to you. ठीक है, ये मैं आपके आंखों में काली पट्टी लगा दूंगा, राइट? उसके बाद आपके सामने बेहद ही टेस्टी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा खाना जो है वो रख दिया जाएगा और आपको गेस करना है कि वो क्या है. Excited? Are you foodie? Otherwise, absolutely, yes. So I'm sure you'll have an amazing time, playing this game. Dada, are you also foodie? No, I'm not foodie, but yeah, let's see, let's try. Right. Partner है ना? Yeah, बिल्कुल. हाँ. Thank you so much. Love you all. Thank you. Thank you. N Ideas Creation and Production presents, ladies and gentlemen, kabhi neem, kabhi shahid. Thank you. Yeah, we'll have quickly single. Right. UV. And also will be open for dinner for media fraternity and also the personal interviews. On the left hand side, we'll have the personal interviews towards the left hand side.